Hey, hello everyone. Welcome to this session. Today I'm going to tell you how you can improve your communication skills. So stay tuned and let's start. Let me share my screen. Okay, so let me start with my self introduction. I'm a communication coach with 8 years of experience. In these 8 years, I have received two awards. Educational Excellence Award that was given to me by Dr. Kiran Bedi. As you know, she is very popular and well-known figure in India. She is the ex-governor of Pondicherry and she is the first woman IPS officer in India. And I also have worked at Byju's. I worked there as a mentor. I worked at Planet Spark as a public speaking expert. I'm an author of this book. I have written this book, right? The complete spoken English grammar guide book. Yeah, so this book is written by me. And I started my career from Concentrix, and I also have worked at IBM. So this is pretty much all about me. And you can say that I have been teaching English 8 years now, and this is my passion. Yeah. Now let's talk about overcoming English barriers. What are the challenges we face? In this session, I'll speak in two languages, Hindi and English. Okay. But in the real class, I'll speak in Bengali as well because there are a lot of learners who understand Bengali. There are a lot of learners who understand English. Hindi. Okay. So I'll speak in both languages. Don't worry. Language would not be a barrier here. ओके तो यहाँ पे हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड फॉर एवरीवन ओके तो लेट्स स्टार्ट so firstly, let's talk about the overcoming the English barriers. So, what are the English barriers? What are the challenges we face? The first problem that English learner face is limited speaking practice. They don't get the right platform. They don't get the right environment to practice speaking. Number two, fear of making mistakes. That what if I make a mistakes and people are making fun of me? And what if people are counting on my mistakes? This fear of rejection and this fear of judgment actually stop them from being fluent in English. Number three, the problem number three is the grammar and feedback challenges. Sometimes, in spite of knowing grammar rules, we can't apply the grammar rules in sentences. So how to do that? How to overcome? How to overcome with these problems? I will tell you in this session. And pronunciation. Pronunciation can be a big headache for you. Sometimes you don't know how to pronounce the word correctly. You don't have the right pronunciation skills. And then vocabulary. Vocabulary is a major issue. You don't recall the right word at the right time. You go blank. You run out of words during the conversation. Right. So these are the major challenges that English learners face. Today I'll give you the solution of these problems. मैं सारे problems का solution दूंगा. So stay tuned and stay till the end of the conversation. Okay. So end of the meeting. Okay. I would like to show you some photographs of mine. This is the photo. This is the photo that was clicked when I received Educational Excellence Award from Dr. Kiran Bedi, being top 100 most impactful teacher of India. And I would like to show you another award that I have received, that is Best Spoken English Institute Award. So this was given to me, JNNYCTC. JNNYCTC means stands for Jawaharlal Nehru Jatiya Yuva Computer Training Center. Yeah. Now this used to be my workstation at Byju's. So today my deliverables are fluency, how to improve your fluency, how to develop vocabulary, effective vocabulary, and how to modulate your voice effectively, how to fix your pronunciation mistakes, how to fix your mother tongue influence, body language, how to fix your body language, how to organize your thoughts, how to develop confidence, and how to practice. So this session is going to be amazing in terms of learning. So don't skip any point. Watch the video, watch the class till the end. You are going to be benefited immensely out of this session. Okay, now let's talk about 5 pillars of communication skill. First of all, you should know what to learn. Then you should know how to learn. So first of all, you need to know what to learn. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको सीखना क्या है, तो आप सीखेंगे क्या, कैसे सीखेंगे? वो तो बाद में आते हैं ना. पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सीखना पड़ेगा हमें. तो लेट्स टॉक अबाउट 5 pillars of communication skills.
The five pillars are fluency, voice, thought structures, body language, and confidence. Fluency means smoothness, how spontaneously you can speak. You should not fumble when you are speaking. That means fluency. Now, voice, you need to have a good voice. You need to have effective voice modulation so that people would listen to you, people would respect. You cannot make pronunciation mistakes, right? You cannot speak in a boring, monotonous way. Nobody is going to listen to you if you speak that way. So you should have an authority on your speech, right? And next point is thought structures. You should know how to organize your thoughts. It is not only about fluency, it's also about your thought structures. How to organize thoughts so that you should not go blank in the conversation. Next point is body language. How to use effective body language so that you can project, you can reflect confidence, right? And obviously, confidence is something can make you and can break you. You need to fix that as well. All right. Yeah. Now, let me debunk some myths. First of all, let me debunk some myths. Even you are putting a lot of efforts to improve communication skills, you'll not be able to successful. You'll not be able to be successful if you are following the wrong way. So you should fix first. You should fix the wrong way first. That how you should not learn, right? And what is the right time? What is the right path to learn and develop your communication skills? Okay. So let's debunk some myths. मिथ नंबर वन, ट्रांसलेशन. आपको कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए दोस्त. अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप 10 साल भी कोशिश करोगे तब भी आप इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे. ट्रांसलेशन इज अ ब्लंडर. ट्रांसलेशन इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट इंग्लिश लर्नर मेक. ओके, सो डोंट डू ट्रांसलेशन. इंस्टेड थिंक इन इंग्लिश. इंग्लिश में सोचो. देखो, अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, पहले ये देखते हैं. देखो, मैं एक ही सेंटेंस, मतलब एक वर्ड लेता हूं एंड उसका ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है आप लोग देखो. ठीक है. तो एक वर्ड का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हमेशा एक जैसा ही नहीं होता है. ओके. तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा. जैसे वीडियो या गान चलाना, राइट. मतलब यहाँ पे चलानो लिखा गया है बंगाली में, बट वीडियो एंड गान चलाना. और तब आप ये बोल सकते हो, बजाना भी बोल सकते हो. एंड कंपनी चलाना, फैमिली चलाना, ओके, कार चलाना, स्कूटी चलाना, ठीक है, मशीन चलाना. अब ये सारे सेंटेंसेस का, ये सारे फ्रेजेस का ट्रांसलेशन क्या एक ही वे में होगा? ऑल्दो चलाना इज कॉमन इन एवरी फ्रेज. चलाना जो वर्ड है, ये वर्ड कॉमन है एवरी सेंटेंस में, एवरी फ्रेजेस में. तो अगर ट्रांसलेशन होगा तो हर चलाने के इंग्लिश एक ही होगा, राइट. एक पर्टिकुलर वर्ड होगा. अगर उसको हम सीख लेते हैं तो देन आराम से हम कहीं पे भी चलाना वर्ड आएगा तो हम उसका ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चलाने का इंग्लिश एक एक जगह पे एक एक तरीके से होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो इसीलिए ट्रांसलेशन काम नहीं करता है. आप तो एक ही वर्ड में ट्रांसलेशन ढूंढते हो. यानी जब आप इंग्लिश टू बंगाली करते हैं तब भी आप यही चीज करते हैं. यानी इंग्लिश टू बंगाली और इंग्लिश टू हिंदी, जो भी है अपना, इंग्लिश टू योर मदर टंग. तो आप क्या करते हैं कि जहां पे आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है वर्ड लिखा है, हाँ ये तो पास्ट हो जाएगा. अब कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो आपको अननोन लगता है, आप उसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आप डिक्शनरी में देखते हैं, फिर भी आपको मीनिंग समझ में नहीं आता. फिर वाइस वर्सा जब आप ट्रांसलेट करते हो, ठीक है, अपना मदर टंग से इंग्लिश, पहले तो ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए. लेकिन ट्रांसलेशन में दिक्कत क्या आता है, अगर कर भी रहे हो तो दिक्कत क्या आता है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड में आप फंसोगे और उसी वर्ड का ट्रांसलेट करने लग जाओगे. बट ऐसा होता ही नहीं है काम, ऐसा वर्क ही नहीं करता है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. तो अगर ऐसा होता तो बहुत आसान हो जाता, राइट. बट ऐसा नहीं है. तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए. ओके, आपको इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में बोलना चाहिए. क्यों? आप देखो, जैसे वीडियो चलाने के इंग्लिश तो प्ले सॉन्ग होगा, प्ले वीडियो होगा, ठीक है. कंपनी चलाना तो रन द कंपनी होता है, रन ए कंपनी होता है. फैमिली चलाना टेक केयर ऑफ द फैमिली और रन ए फैमिली. कार चलाना क्या होता है? कार चलाना ड्राइव होता है. स्कूटी चलाना क्या होता है? राइड होता है. एंड मशीन चलाना ऑपरेट होता है. तब देख लो, हर चलाने के इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एक एक जगह पे एक एक जैसा हो रहा है, एक एक तरीके से हो रहा है, राइट. आप देखो, काटा मतलब काटना, कॉल काटना, सब्जी काटना, चना काटना. ओके, तो सारे इंग्लिश जो है यहाँ पे एक एक जगह से एक एक तरीके से हो रहा है. या तो कॉल करने को इंग्लिश होगा कि डिस्कनेक्ट द कॉल और हैंग अप द कॉल, राइट.
सब्जी काटने को इंग्लिश में कहेंगे, सब्जी काटने का इंग्लिश में कहते हैं कि चॉप अप, और आप कट भी बोल सकते हैं। चालान काटना मतलब फाइन कर देना, है ना। कोई एनिमल काटना, इसमें सेक्रीफाइस भी हो सकता है, किल भी हो सकता है। करेक्ट। तो इस तरह से जो है कि काटने का इंग्लिश, टिकट काटना होता है, बाई होता है। तो काटने का इंग्लिश जैसे पैसा कट गया किसी का अकाउंट से, तो वहां पे चार्ज होगा, वहां पे डिडक्ट होगा, उसका इंग्लिश डिडक्ट मनी। तो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशन नहीं करना है, बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं करना है। अब देखो ट्रांसलेशन के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, और भी मैं आपको डिटेल्स में एलाबोरेट करता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस देखो, यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड जब इसको ट्रांसलेट करते हो, ऑल्दो अगर सक्सेसफुल हो भी जाते हो ट्रांसलेशन में, तब भी आपका इंग्लिश में वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा, आपका इंग्लिश गलती होगा, ठीक है। अब देखो, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि यस्टरडे कल मैंने सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गया था, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे किया गया है? यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ओके। तो आप तो अपना हिंदी सेंटेंस से अब यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राइट ट्रांसलेशन होगा, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। फॉर बाइंग तो के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, उस सेंस में के लिए के सेंस में फॉर होता है, तो सब्जी खरीदने के लिए। तो हिंदी सेंटेंस से आप इंग्लिश में ऐसा ट्रांसलेट कर रहे हो, बट रियल लाइफ में ऐसा, रियल लाइफ ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्पस बताने के लिए, यहाँ पे सेंटेंस ऐसा है कि मार्केट मैंने क्यों गया, क्योंकि मैं सब्जी मुझे खरीदना था, तो मैं पर्पस बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में जब पर्पस बताते हैं तो फॉर एंड आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते, टू प्लस वर्ब की वी वन यूज करते हैं। यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सडनली आई सॉ माई फ्रेंड एंड आई टोल्ड हिम वेयर आर यू गोइंग बाई वॉकिंग। आप देखो यहाँ पे बाई वॉकिंग मैंने लिखा, ठीक है, बाई वॉकिंग। ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, बाई वॉकिंग नहीं बोलते हैं, ओके। तो आप कैसे बोलोगे? एंड सडनली आई सॉ, यहाँ पे आपको तीन वर्ड यूज करना पड़ा, सडनली आई सॉ, बट इसका एक पर्टिकुलर वर्ब है, राइट। तो आप तो ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी से, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, मतलब पर्टिकुलर जैसा आपने सोचा पर्टिकुलरली वैसे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करो, बट ऐसा उसमें इंग्लिश उतना इफेक्टिव नहीं होता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। सो ऑन द वे आप ये बोलो, सडनली आई सॉ मतलब जब आप जा रहे थे, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बोल सकते हो, ऑन द वे आई रैन इन टू वन ऑफ माई फ्रेंड। रैन इन टू मतलब सडनली सॉ, किसी को आप सडनली देखते हो तो उसका इंग्लिश होता है रैन इन टू। ये पास्ट में किया तो इसीलिए रैन इन टू बोला, एंड अगर प्रेजेंट में होता तो क्या हो जाता? रन हो जाता, है ना। रन से हो गया रैन। तो आई रैन इन टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देन वेर आर यू गोइंग बाई वॉकिंग, ये ना बोल के हम ऐसा बोल सकते हैं, आई आस्क्ड हिम, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, वेर आर यू हेडेड, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देन आई सेड, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देन आई सेड आई एम हैविंग लिटिल हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। देन मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग से मेरा सिर दुख रहा है, ठीक है, मुझे हेडेक हो रहा है, ऑलराइट। तो इसको हैविंग हेडेक इस तरह से नहीं बोला जा सकता, इसको ऐसा बोला जा सकता है, आई हैव हैड ए स्लाइट हेडेक सिंस मॉर्निंग। जैसे इंग्लिश में कोलोकेशन के हिसाब से होता है, जैसे हैव ए हेडेक ऐसा होता है, रन इनटू मतलब सडनली सॉ समवन। तो इस तरह से इंग्लिश में फ्रेजेस होता है जो आपको यूज करना होता है, ना कि बंगाली में जो सोचा है, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आया, सेंटेंस आपके आया, उससे ट्रांसलेट करना होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, we stood there and did many talks, we both stood there and did many talks। तो did many talks इस तरह का इंग्लिश होता है रिडिकुलस, कोई सुनेगा जो इंग्लिश जानते हैं वो हंसेगा इस इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? we stood there and chatting for a while, क्या बोलेंगे? chatting for a while। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर सम टाइम रेन स्टार्टेड वी बिकेम वेट बैडली। मतलब कुछ टाइम के बाद रेन चालू हो गया, रेन शुरू हो गया, एंड वी बिकेम वेट बैडली। वेट का मतलब क्या है? गीला गीला, मतलब थोड़ा कोई पानी गिर गया कहीं पे, थोड़ा सा गीला हो गया, तो ये होता है वेट। बट वहां पे तो हम कंप्लीटली मतलब सोक्ड हो गए थे, मतलब कंप्लीटली हम भीग गए थे, ठीक है। जैसे स्क्वीज करने पर पानी निकल के आएगा, तो उसको कहते हैं सोक्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली एंड वी गॉट कंप्लीटली सोक्ड, ठीक है। कम अंडर द शॉप अदरवाइज कोल्ड विल कैच यू। कोल्ड विल कैच यू ये तो हिंदी सेंटेंस से ट्रांसलेशन हो गया, बट राइट सेंटेंस होगा कि कम स्टैंड अंडर द शॉप शेड और यू माइट कैच ए कोल्ड। He laughed and said, he said, no problem, I am habitual of rain। ऐसा नहीं होगा, he laughed and said, it's okay, I am used to rain।
ठीक है। देन आई रिटर्न बैक, द रिटर्न के मतलब वापस, बैक के मतलब भी वापस, दोनों वापस वापस एक साथ में। कैसे? दोनों का इंग्लिश लौटना होता है, तो हमें एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं? देन आई रिटर्न बैक नहीं होगा, देन आई हेडेड बैक, देन आई हेडेड बैक माई होम, माई मदर स्कोल्डेड मी, मेरे मम्मी ने डांटा, माई मदर स्कोल्डेड मी बिकॉज आई वॉज लेट इन हाउस। तो ऐसा नहीं होता लेट इन हाउस बोल के कुछ इंग्लिश नहीं होता, आई केम लेट। ठीक है। माई मदर गॉट अपसेट बिकॉज आई केम लेट। तो समझ में आ रहा है कि अगर आप ट्रांसलेट कर भी देते हो, आपकी फ्लुएंसी बिल्डअप भी हो जाती है, फिर भी आपका इंग्लिश स्टैंडर्ड नहीं होगा ट्रांसलेशन से। सो प्लीज समझो, ट्रांसलेशन नहीं करना है। ओके। मिथ नंबर 2, आपको बहुत सारे वर्ड सीखना है। यू नीड टू लर्न hell lot of words to improve your fluency, but that is wrong concept। ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो व्हाट इज द राइट कॉन्सेप्ट? देखो, मैंने गूगल में भी सर्च किया। ठीक है। मैंने क्या लिखा? हाउ मेनी वर्ड्स used most frequently in English that covers 90% of the daily conversation। ठीक है। मैंने ये सर्च किया गूगल में और मुझे क्या आंसर मिला? यू ओनली नीड अबाउट 2500 to 3000 वर्ड टू अंडरस्टैंड एंड कवर 90% ऑफ एवरीडे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। तो समझ में आ रहा है? सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रूफ दिखाने के लिए मैंने गूगल में भी सर्च करके आपको दिखा दिया। ठीक है। मतलब आपको बहुत ज्यादा वर्ड ज्यादा नहीं सीखना चाहिए, आपको कुछ काम का वर्ड सीखना चाहिए, कॉन्वर्सेशनल वर्ड सीखना चाहिए, ताकि आप उसी वर्ड से, उसी लिमिटेड वर्ड से कोई भी सिचुएशन में आपको बात करना पड़े, आप इफेक्टिवली उस सिचुएशन में बात कर पाए। ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा वर्ड सीखने का दरकार नहीं है, जस्ट कुछ लिमिटेड वर्ड सीखना है। अगर आप मुझे बोलेंगे कितने सारे वर्ड्स आप सीखेंगे तब एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, आप 4500 टू 5000, 4500 टू 5000 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। ठीक है। बेसिक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए 3000 वर्ड्स आर इनफ। ठीक है। आपको ज्यादा नहीं सीखना है, लेकिन आप करते क्या हो? रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ते हो एंड वहां से एडवांस्ड वर्ड सीखते हो जो कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं होता है, आप उसको यूज नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो। रादर आप सिंपल वर्ड सीखो जो कॉन्वर्सेशन में आप, जिसको आप यूज कर पाओगे, एंड आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। ठीक है। myth number 3, let's debunk the myth number 3, practice speaking randomly not according to the level and no object of learning, no feedback। देखो, आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हो? आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो? आप इंटरव्यू प्रैक्टिस क्रैक करने के लिए? क्या आप पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहते हो? क्या आप कॉर्पोरेट इंग्लिश सीखना चाहते हो? किस लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो? राइट। पहले ये ऑब्जेक्टिव आपको ठीक करना होगा। यू नीड टू फिक्स योर ऑब्जेक्टिव। राइट। कहीं से भी कैसे भी आपने चालू कर दिया प्रैक्टिस, कोई आपको फीडबैक नहीं दे रहा है, आप गलत इंग्लिश बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, और गलत इंग्लिश प्रैक्टिस करके आपको ऐसा लग रहा है कि टुमारो और वन डे आई एम गोइंग टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। नो, इट डज नॉट वर्क दैट वे। इतना इजी नहीं है आप जैसा सोच रहे हो। ठीक है। तो इजी है, लेकिन अगर आप सही वे में स्मार्ट टेक्निक्स अप्लाई करके सही वे में सीखो, स्मार्ट टेक्निक मीन्स सही वे में। ठीक है। जो लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है उस हिसाब से सीखो। एंड यहाँ पे कुछ गुरुज आएंगे, बोलेंगे भाई जो है कि हमने मदर टंग ऐसे सीखा, हम लोग तो ऐसे ही मदर टंग सीखा। नहीं भाई, मदर टंग ऐसे नहीं सीखा। पहली बात, आप मदर टंग से आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट कंपेयर योर सेकंड लैंग्वेज विद द फर्स्ट लैंग्वेज। दिस इज stupidity, this is totally stupidity, like it is idiotic। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है। मदर टंग में क्या होता है कि आप बचपन से आप सीखते आ रहे हो, कितना टाइम आप उसने दिया है, बचपन से उस लैंग्वेज में आप एक्सपोज्ड हो। यू आर एक्सपोज टू योर मदर टंग सिंस योर चाइल्डहुड, सिंस यू वर बॉर्न। राइट। एंड वहां पे चारों तरफ वही लैंग्वेज बोला जा रहा है। तो मतलब इतना अगर एक्सपोजर आपको मिल रहा है तो अपने आप ऐसे ही सीख जाते हैं कोई भी लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश में क्या ऐसा हो रहा है? तो इंग्लिश के साथ उसको कंपेयर करना क्या ठीक रहेगा? आपके सामने कौन इंग्लिश बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको स्मार्ट तरीके से कम टाइम में, मतलब आपको शॉर्ट टाइम में ये इंग्लिश सीखना आ जाए। ठीक है। ऐसा प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए रैंडमली करने से कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिथ नंबर 4, रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम द बिगिनिंग। जो बिगिनर्स होते हैं ना, बिगिनर्स लर्नर्स को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर कब पढ़ना चाहिए? फर्स्ट लर्न द बेसिक वर्ड, डेवलप फ्लुएंसी, देन लर्न न्यूज़पेपर, देन लर्न वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, देन रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। आपको भी इजी इंग्लिश सीखना चाहिए। आप स्टोरी बुक्स पढ़ो बच्चों का, अब नोवेल्स पढ़ो, जो वर्ड सीख के आपको कॉन्वर्सेशन में हेल्प होगा, जो वर्ड सीख के आपको कॉन्वर्सेशन करने में मदद मिलेगा, वैसा वर्ड सीखो। अब बेसिक लेवल में आपको बेसिक वर्ड नहीं मालूम है और अब एडवांस वर्ड सीख दो तो ये कैसे चलेगा? तो यू शुड नॉट स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर। ओके। सो इट इज एज सिंपल एज दैट।
नेक्स्ट, मिथ नंबर 5, नो ग्रामर नो शॉर्टकट। देखो, कोई ग्रामर अगर बोलता है कि मैं नहीं सीखूंगा फिर मैं फ्लुएंसी डेवलप कर लूंगा, आई डोंट नो, हो सकता है, बट कितना साल में होगा आई डोंट नो। बट एक जनरली आप सोच के देखो, नॉर्मली आप सोच के देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, मैं कुछ सेंटेंस नीचे में लिखा हूं, उसका एग्जाम्पल एविडेंस मैं आपको देता हूँ। आई विल मीट यू यस्टरडे, तो ये सेंटेंस आप भी बोलोगे सर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आई विल मीट यू यस्टरडे नहीं होगा, टुमारो होगा, क्योंकि विल तो फ्यूचर है, यस्टरडे तो पास्ट है, तो पास्ट एंड फ्यूचर का कैसे रिलेशन हो जाएगा? ठीक है, यस्टरडे तो हम इस सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। आप ये बोलोगे ना, तो मुझे कैसे पता चला कि विल जहां पे लगता है वो फ्यूचर टेंस है? यही तो ग्रामर है ना? दूसरा सेंटेंस देखो, आई डिड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही सेंटेंस होगा, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। क्या सेंटेंस होगा? आई डिड नॉट कंप्लीटेड नहीं होगा, कंप्लीट के साथ ईडी नहीं लगेगा। तो ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट सिंपल टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ये मुझे टेंस का रूल्स ने सिखाया। तो अगर आप टेंस नहीं जानोगे तो कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे, है ना? आई हैड ईट फूड, आई हैड ईटन फूड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद V3 होता है। ये मुझे मतलब किसने सिखाया, राइट? ये मुझे ग्रामर रूल्स मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ, है ना? तो नो शॉर्टकट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिना ग्रामर सीख के कोई इंग्लैंड से आएगा या तो आप इंग्लैंड में आपको लैंड कर दिया जाएगा एंड आप वहां से सारे लोग बोलोगे और आप सीख लोगे, ऐसा सिचुएशन तो है नहीं। तो ये सब एडवाइस जो है बुलशिट है, टोटली शिट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको फंक्शनल ग्रामर सीखना ही होगा, इसीलिए मैंने ये किताब लिखा है फंक्शनल ग्रामर। मैं 5000 स्टूडेंट को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने इस ग्रामर में जितना भी ग्रामर, मतलब इस बुक में जितना भी ग्रामर्स रूल्स आपको सीखना होता है सारे यहाँ पे हैं। तो इसी से स्टार्ट होता है, ओके। बट ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर ही सब कुछ है, नहीं। कुछ लोग ये भी गलतियां करते हैं कि चलो सर ग्रामर सीखेंगे और जितना हम ग्रामर पढ़ेंगे उतना ही फ्लुएंसी हमारा इंप्रूव होगा, बट ऐसा भी नहीं है। एक बैलेंस्ड बना के चलना पड़ेगा, जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही देना पड़ेगा। ग्रामर 25% है, एक लैंग्वेज में ग्रामर 25% है, and बाकी जो चीज़ है वो आपकी कैसे आप सोचते हो, इंग्लिश में सोचना, आपकी वोकैबुलरी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, ये सब भी मैटर करता है। आपका वर्बल लैंग्वेज भी, जो वर्बल क्यूज है, नॉन वर्बल क्यूज, आई मीन जो नॉन वर्बल क्यूज है, वो भी मैटर करता है। ठीक है, चलिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंप्रूव फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को कैसे इंप्रूव करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, स्टार्ट विद द फ्लुएंसी। देखो, फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। यू नीड टू डेवलप स्ट्रक्चर्स, यू नीड टू लर्न कन्वर्सेशन वोकैबुलरी, इंग्लिश कोलोकेशंस, स्मॉल टॉक फ्रेजेस, and then you need to practice enough to develop your fluency. It is as simple as that. If you want to build a house, then what do you need? You need to build a structure first. Similarly, if you want to make sentences, you need to build structure. You need to know the structure, in which structures I will make the sentence, I'll form the sentence. Okay. एंड आपको एडवांस्ड वर्ड नहीं सीखना चाहिए, पहले पहले आपको सीखना चाहिए कॉन्वर्सेशनल वर्ड, जो वर्ड कॉन्वर्सेशनल के इफेक्टिव है, जो वर्ड आप यूज कर पाओगे कॉन्वर्सेशन में। एंड इंग्लिश कोलोकेशंस, देखो इंग्लिश में अगर आप सोच पाओगे, इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में बोल पाओगे, अगर आप कोलोकेशन सीखोगे, इंडिविजुअल वर्ड सीख के, इंडिविजुअल वर्ड सीख के आप बेसिक नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। बट इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में बोलना एंड फ्लुएंटली बोलना कभी नहीं आएगा, इसलिए आपको इंग्लिश कोलोकेशन सीखना पड़ेगा एंड स्मॉल टॉक फ्रेजेस भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड देन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फ्लुएंसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में बोला, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सेंटेंसेस का। मुझे उसको मदद करना पड़ा था, बेंगलीते আমাকে তাকে সাহায্য করতে হয়েছিল और मुझे उसको मदद करना पड़ा था। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर आपको इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको इस सेंटेंस कैसे सजाएंगे, कैसे सजाना होता है, ये आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब आप नहीं जानते सेंटेंस के में क्या ग्रामर रूल यूज होगा। देखो, इस सेंटेंस में ग्रामर रूल यूज होगा, सब्जेक्ट हैड टू V1 एंड उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे कैसे समझ में आया कि मुझे पता है कि इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मुझे मदद करना पड़ा था, वहां पे जाना पड़ा था, करना पड़ा था, खाना पड़ा था, इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें सब्जेक्ट हैड टू V1 लगता है। तो ये ग्रामर रूल मुझे पता है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा, आपको भी ये रूल आना चाहिए, एंड देन आप भी यूज कर पाओगे, देन तभी आप जाकर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, आई हैड टू हेल्प हिम, मुझे जल्दी उठना था, उठना पड़ा था, एक ही बात है, तो आई हैड टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस
देखो एक स्ट्रक्चर अगर आप सीख जाते हो देन सेंटेंस बनाना, उसी तरह की सेंटेंस बनाना आपके लिए इजी हो जाता है। मुझे उसको उसका घर जाना पड़ा था तो आई हैड टू गो टू हिज होम। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में, वो सारे स्ट्रक्चर्स को आपको मास्टरी करना पड़ेगा। यू नीड टू मास्टर ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे फ्लुएंसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैं एक ईमेल भेजूंगा, ठीक है, आई विल सेंड एन ईमेल, तो मुझे विल का सेंटेंस में कैसे यूज करते आता है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस को देख के मुझे पता है कि कैसे सेंटेंस, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा। तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई करो क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, कैसे सेंटेंस बनेगा, तभी आप जाके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। जैसे पास्ट हैबिट के बारे में बोलना होता है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, स्ट्रक्चर यूज करूंगा, सब्जेक्ट यूज टू V1 एंड ऑब्जेक्ट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं आपकी मदद करता बट मैं बिजी था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वुड हैव हेल्प्ड यू बट आई वाज बिजी। तो इस तरह से जो आपको पहले स्ट्रक्चर्स फीड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, देन आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। स्ट्रक्चर्स के बिना आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। वो मुझे अपने काम पूरे करवा दो, मुझसे अपना पूरे काम करवाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही मेक्स मी कंप्लीट हिज टास्क। ठीक है, ओके। नाउ हाउ टू डेवलप वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी किस तरह से डेवलप करना चाहिए ताकि आपको सही वर्ड सही टाइम पर मालूम हो, सही टाइम पर रिकॉल हो जाए, आप सेंटेंस में यूज कर पाए। देखो आपको पहले ना एडवांस वर्ड नहीं बिल्ड करना चाहिए, आपको कॉन्वर्सेशनल वर्ड सीखना चाहिए। ठीक है, क्या कॉन्वर्सेशनल वर्ड, अगर मैं आपको कॉन्वर्सेशनल वर्ड सिखाऊंगा, तो अगर मैं फूड टॉपिक लूंगा तो मैं ये सारे वर्ड्स आपको सिखाऊंगा, और भी वर्ड्स होते हैं कॉन्वर्सेशनल वर्ड, वो सारे वर्ड्स सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि जिस खाने में मिलावटी नहीं है, तो हम इसको सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लेंगे, सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। वी शुड ईट ऑर्गेनिक फूड। एडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेटेड मतलब उसका ऑपोजिट। वी शुड नॉट ईट एडल्ट्रेटेड फूड, मतलब जिस खाने में मिलावटी है तो उसको कहते हैं एडल्ट्रेटेड फूड। तो एडल्ट्रेटेड के बाद रॉटेन। रॉटेन का मतलब क्या है, जो खाना सड़ गया है, गल गया है, ऐसा मतलब जो खाना नष्ट हो गया है तो उसको कहते हैं रॉटेन। ठीक है, तो वी शुड नॉट ईट रॉटेन फूड, वी शुड नॉट द ईट रॉटेन फ्रूट्स, फ्रूट्स आर रॉटेन। इस तरह से सेंटेंस में प्रैक्टिस करवा देंगे तभी आपको याद रहेगा। देन ओवर कुक्ड। ओवर कुक्ड मीन्स जो खाना ज्यादा कुक हो गया है, तो ब्रोकोली वॉज ओवर कुक्ड, ब्रोकोली इज ओवर कुक्ड। ओके, ब्लैंड मतलब जिस खाने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है, दिस सूप इज ब्लैंड मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट इस खाने में नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको कॉन्वर्सेशनल वर्ड सीखना है। दूसरा टॉपिक देता हूँ, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के रिगार्डिंग अगर मैं वर्ड सिखाऊंगा तो ये सारे वर्ड्स आपको पहले सीखना होगा, जैसे चाइल्डहुड, कॉमन इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो ज्यादा ओपनली बात कर पाते हैं, किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, हिचकिचाते नहीं है। एंड इंट्रोवर्ट मतलब उसका ऑपोजिट, ओके, थोड़ा रिजर्व टाइप का होता है, शाई नेचर का होता है। हैंगआउट मतलब कैजुअली किसी के साथ टाइम स्पेंड करना। डिस्प्यूट होता है, जो डिस्प्यूट मतलब कॉमन जो झमेला होता है वो उसको कहते हैं डिस्प्यूट। क्वालिटीज मतलब अपना जो पर्सनालिटी का क्वालिटीज होता है, ट्रेट्स भी वही कहलाता है, उसका वही मीनिंग है। ग्रो अप मतलब जैसे हम लोग चाइल्डहुड में हम लोग ग्रो अप होते हैं। ठीक है, एंड क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स मतलब होता है जो अपना क्लोज फ्रेंड्स होता है ना। ये सारे वर्ड्स तो मैंने आपको सिखा दिया, अब मैंने ऐसे ही आपको छोड़ दिया तो आप दूसरे दिन भूल भी जाओगे, लेकिन मैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए बोलूंगा, इस सारे वर्ड्स को यूज करके अपना फ्रेंड्स के बारे में बोलना होगा, इस तरह से प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। मैं इस तरह से प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास में। इन रिगार्ड टू फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सिमिलर पर्सनालिटीज लाइक मी। सारे वर्ड्स को मैं देखो यूज करूंगा, पर्सनालिटीज लाइक मी, देखो पर्सनालिटीज लाइक मी, आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल, एक्सट्रोवर्टेड वर्ड को यूज कर दिया। ठीक है, then which means I don't have introverted friends, मैंने introverted word को use कर दिया। In addition I would say all my friends share common interest, sometimes my friends and I have common disputes, however it is generally small dispute about which movie to see, where we are going to eat food. Some of my friends are from my childhood, I would say most of the time me and my friend have similar traits, probably most of the things दैट वी डू इज हैंग आउट। तो इस तरह से मैंने अगर आपको प्रैक्टिस करा दिया अपने हिसाब से, अपने फ्रेंड्स के बारे में अपने इस वर्ड्स को यूज करके अपने एक पैराग्राफ बना लिया, तो आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरह से वर्ड सीखना होता है, सिंपल वर्ड्स जो है इस तरह से वर्ड सीखना होता है। ठीक है, नाउ हाउ टू लर्न एडवांस्ड वर्ड। कुछ एडवांस वर्ड भी सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वेराशस। कुछ लोग बोलेंगे शियस, शियस नहीं है, शस, वेराशस। ओके, इसका मतलब क्या है, ऑनेस्ट, एक्यूरेट, सच है, जो झूठ नहीं है। तो ना अगर मैं ये बोल के आपको छोड़ दिया ना तो आप नेक्स्ट मोमेंट में भूल जाओगे
क्या बोला था रिकॉल नहीं कर पाओगे और सेंटेंस में भी यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको कैसे सीखना है, रियल लाइफ वर्ड के साथ इसको लिंक कर दो, रियल लाइफ वर्ड के साथ लिंक कर दो, फ्रेज बना लो, कोलोकेशंस बना लो। कोलोकेशंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो इस तरह से वर्ड सीख लो। वेरासियस रिपोर्ट, वेरासियस स्टेटमेंट, देखो अब और नहीं बोलोगे, वेरासियस रिपोर्ट बोला, वेरासियस स्टेटमेंट बोला, अब और नहीं बोलोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है, लॉयल, फर्म, डिटरमिन्ड, ठीक है। तो इसके साथ भी कुछ वर्ड लिंक कर देते हैं ताकि आप भूलोगे नहीं। देखो ग्रुप में वर्ड सीखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। इफ यू लर्न ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड कोलोकेशंस, देन आप भूलेंगे नहीं, लेकिन एंड आपको इजीली यूज करना भी आ जाएगा क्योंकि वो आपको याद रहेगा। स्टीड फर्स्ट सपोर्ट, स्टीड फास्ट फ्रेंड, स्टीड फास्ट कमिटमेंट, इस तरह से अगर आप सीखोगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो एडवांस वर्ड अगर आप सीख रहे हो तो इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वर्ड्स आपने सीख लिया, आपको आपको कोलोकेशन सीख लिया। कोलोकेशन मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे वेराशियस रिपोर्ट एक कोलोकेशन हो गया। जैसे कि वेराशियस स्टेटमेंट, वेराशियस रिपोर्ट, वेराशियस स्टेटमेंट, तो ये कोलोकेशन, ये सारे कोलोकेशन हो गया। तो ये कोलोकेशंस एंड स्ट्रक्चर को एक करके आपको सेंटेंस बनाना होता है, ना कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल देखो, लिंक स्ट्रक्चर्स एंड कोलोकेशंस, इस एंड सी टेक्निक, तो ये फॉलो करते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। प्रैक्टिस में ये टेक्निक फॉलो करवा के प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपको इंग्लिश में बोल के इंग्लिश में सोचना आना चाहिए। तो मैं वर्ड्स दे देता हूँ सामने ताकि आपको थॉट्स, आप बंगाली में और हिंदी में अपना मदर टंग में मत सोचो, मैं वहां पे स्टॉप कर देता हूँ, तो आप इंग्लिश में सोच पाओ, ठीक है। तो देखो मेरा सेंटेंस ये है कि मैं धर्मतला बस स्टॉप में उतर गया था, मैं धर्मतला बस स्टॉप में उतर गया था। अब इस सेंटेंस में अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि ये तो पास्ट का सेंटेंस है, तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इतना तो मालूम हो गया। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है या पास्ट टेंस है, मालूम हो गया। फिर भी आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि स्ट्रक्चर एंड ग्रामर सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद आपको वर्ड, क्या वर्ड यूज होगा इस सेंटेंस में, क्या कोलोकेशन यूज होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ये सेंटेंस में जो कोलोकेशन यूज होगा, गेट ऑफ द बस स्टॉप, गेट ऑफ द बस स्टॉप ना, बस से उतर जाने को कहते हैं गेट ऑफ द बस स्टॉप। क्या, गेट ऑफ द बस, सॉरी माय मिस्टेक, गेट ऑफ द बस नहीं है, गेट ऑफ द बस, ओके। ये कोलोकेशन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। अब देखो आपको कोलोकेशन मालूम हो गया, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी मालूम है। तो अब गेट ऑफ, गॉट ऑफ हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस है, ये मुझे स्ट्रक्चर कह रहा है, स्ट्रक्चर बोल रहा है V2 लगाओ। अब दोनों को मर्ज करता हूं, आई गॉट ऑफ द बस, आई गॉट ऑफ द बस एट धर्मतला बस स्टॉप, आई गॉट ऑफ द बस एट धर्मतला बस स्टॉप, और आई गॉट ऑफ एट द धर्मतला बस स्टॉप, क्योंकि बस स्टॉप में दोबारा यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बस के बारे में बात हो रहा है। और ऐसे भी बोल सकता है, आई गॉट ऑफ द बस एट धर्मतला बस स्टॉप, ठीक है, समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था। यहाँ पे भी पास्ट टेंस का जिक्र हो रहा है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस तो समझ में आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, लेकिन वर्ब क्या यूज करना है, वही तो कोलोकेशंस है। यहाँ पे वर्ब होगा सेट द अलार्म। आपको सेंटेंस सीखना पड़ेगा, कोलोकेशन सीखना पड़ेगा। सेट द अलार्म, सेट द अलार्म मतलब अलार्म लगाना। अब देखो सेंटेंस इजी हो जाएगा। अब अगर आपको टेंस पता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर मालूम है, अब इजीली कर दोगे। आई सेट द अलार्म, सेट का तो सेकंड फॉर्म सेट ही होता है ना, तो आई सेट द अलार्म फॉर 6 AM, हो गया। जैसे मेक पेमेंट, पेमेंट वर्ड जब आएगा तो आप ऐसे बोलो कि आई मेक द पेमेंट, आई विल मेक द पेमेंट। विल कहाँ से आया, ये स्ट्रक्चर से आया कि मैं फ्यूचर का बोलूंगा तो विल लगाऊंगा, पास्ट का बोलूंगा तो मेड लगाऊंगा। लेकिन मेक द पेमेंट ये पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये वर्डिंग, ये जो कोलोकेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको इफेक्टिवली ट्रांसलेट कर पाओगे। जब बिल बोलोगे तो पे द बिल ऐसा बोलो, पे द बिल, पे के साथ बिल का कनेक्शन है, पता है, ऐसे ही वर्डिंग बनते हैं सेंटेंस में इंग्लिश में। तो आपको ये सारी चीज मालूम होना चाहिए। तो हम लोग आपको इनफ कोलोकेशंस डेवलप करने में मदद करेंगे ताकि आपको जो भी सेंटेंस है नेचुरली इंग्लिश में आप सोच पाए एंड इंग्लिश में ही बोल पाए, एंड ये टेक्निक को अप्लाई करके आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाए, ठीक है ना। और एक चीज आपको करना पड़ेगा, वो है स्मॉल टॉक फ्रेजेस। स्मॉल टॉक फ्रेजेस क्या होता है, क्या सिचुएशन में क्या बात होती है, क्या सिचुएशन में क्या सेंटेंस पॉपुलर होते हैं, पहले ना उसको सोच के मन ही मन प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में जब आप जाओगे ना तब आपको मुंह से ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 फ्रेजेस टू एंड ए कॉन्वर्सेशन, ऐसा भी हम लोग करते हैं क्लास में। इस तरह से टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे टू एंड ए कॉन्वर्सेशन में क्या क्या फ्रेजेस यूज हो सकता है, इट वॉज नाइस प्लेजर चैटिंग बट टॉकिंग विथ यू, वेल इट इज गेटिंग लेट। मतलब जब कॉन्वर्सेशन खत्म हो रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगा, तो इट वॉज नाइस प्लेजर चैटिंग और टॉकिंग विथ यू।
अच्छा अभी लेट हो रहा है, वेल इट इज गेटिंग लेट, एनीवे जो भी है, आई शुड गेट गोइंग, मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी आई एम अफ्रेड आई नीड टू गो, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे बीच में कट आपको कट करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट आई एक्चुअली गॉट टू रन और हैव टू रन, यहाँ पे रन मतलब दौड़ना नहीं है, मतलब भागादौड़ी करके जल्दी पहुंचना है कहीं पे, ये मीनिंग है इसका। सॉरी आई कांट टॉक लॉन्गर, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, आई हैव टू गो। ठीक है, अगर प्रेजेंटेशन में है, मीटिंग में है, आप ऐसे बोल सकते हो, इट साउंड्स लाइक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग वी नीडेड टू, सो आई लेट यू गो, सो थैंक यू फॉर सच ए प्रोडक्टिव मीटिंग। I am sorry. Next point. I am sorry to leave so quickly. It's been a pleasure and I hope we can reconnect soon. ठीक है, तो इस तरह से देर आर मेनी फ्रेजेस, इफ यू प्रैक्टिस बिफोर हैंड, बिफोर द कॉन्वर्सेशन, इट वुड बी इजी फॉर यू टू एंड द कॉन्वर्सेशन, टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इस तरह से आपको सिचुएशन के हिसाब से फ्रेजेस प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं क्लास में कराऊंगा, एंड ऑब्वियसली ये चीज आपको भी सीखना आ जाएगा ना, आप इसको सेंटेंस में यूज कर पाओगे। ठीक है, नाउ हाउ टू ऑर्गेनाइज थॉट्स, थॉट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। समटाइम्स यू मे गो ब्लैंक, समटाइम्स यू गो ब्लैंक, यू डोंट गेट द राइट वर्ड एट द राइट टाइम, यू सिंपली फंबल, यू जस्ट फंबल टू मेक सेंटेंसेस, राइट। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज थॉट्स, देखो थॉट्स को अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे ना, तो हम कभी भी फ्लुएंटली एक टॉपिक में 2-4 मिनट बोलना नहीं आएगा। ठीक है, तो टॉपिक में अगर आपको 2-4 मिनट विदाउट फंबलिंग बोलना है, तो थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप ब्लैंक ना हो जाए कॉन्वर्सेशन के दौरान। ओके, तो थॉट स्ट्रक्चर्स, यू नीड टू डेवलप द थॉट स्ट्रक्चर्स, सी दैट यू नीड टू गिव opinion on any topic, then you need to develop thought structure, like you need to develop this technique। अगर आपको ओपिनियन देना है ना, तो ये टेक्निक को आप अप्लाई करिए। जैसे प्रेस टेक्निक, प्रेस टेक्निक का मतलब क्या होता है कि पहले आप अपना पॉइंट बोलिए। ठीक है, अपना पॉइंट बोलिए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, मैं आपको टॉपिक दिया, सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, सोशल मीडिया इज गुड और बैड, तो आप पहले स्टार्ट कीजिए वाई सोशल मीडिया के बारे में बोलना क्यों है, राइट। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के बारे में बोलना क्यों है, सोशल मीडिया के बारे में वाई से भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने ओपिनियन से भी स्टार्ट कर सकते हो। वाई मतलब सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, इट हैज बिकम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Okay, there are many advantages and disadvantages of social media. It depends how we are using it. So we should know how to use social media wisely. ये वाई पॉइंट है, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, आप ये बताने जा रहे हो, तो पहले ना आपको रेलिवेंस ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड द रेलिवेंस, व्हाई इट इज रेलिवेंट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। और ओपिनियन, सिंपली आप ये बता दो, सोशल मीडिया कैन बी गुड, कैन बी बैड, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव, वेरियस, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, हाउ द यूजर एंड पीपल आर यूजिंग इट। ठीक है, तो इस तरह से आप ओपिनियन बता दो, देन रीजन बताओ। ठीक है, पॉइंट के बाद रीजन बताओ, कि बैक इट अप विथ 4-5 reasons that why social media is good, why social media is bad, then share your own personal experience, then summary में क्या बोलोगे आप, कि like as we have seen that social media has some advantages and disadvantages, we should use social media wisely so that we can maximize the benefits of social media and minimize the drawbacks of social media। getting my point? तो इस तरह से थॉट्स को कुछ सजाना होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से कुछ थॉट स्ट्रक्चर सिखाते हैं, ताकि कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या थॉट स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, तो आप वो थॉट स्ट्रक्चर को अप्लाई करके आप एफर्टलेसली बात कर पाते हो। ठीक है, जैसे डब्ल्यू एच टेक्निक, डब्ल्यू एच टेक्निक आप कहाँ अप्लाई करोगे, जब आपको कुछ एक्सपीरियंस बोलना होगा, कोई चीज को नैरेट करना होगा, कोई इवेंट को आपको नैरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कल मैंने कैसे बिताया, तो उसको मुझे नैरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कल मूवी देखने के लिए गया था, एंड उसका जो एक्सपीरियंस है मुझे नैरेट करना है, तो देन मैं ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए ब्लूटूथ हेडसेट के बारे में बताना है, या तो मैं बस ये डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे मुझे अगर मूवी का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से बोलूंगा कि आई वेंट टू सी द मूवी विथ माई फ्रेंड। ओके, I watched Dhurandhar movie, for example, Dhurandhar 2. I watched it in the evening. Okay, after and why? After working for long hours, I was really bored and I want to get refreshment. Okay, I wanted to relax my mind. That's why I called my friend and we went to see the movie. It was nice and fantastic movie where I saw the movie at RDV Cinema Hall. So in this way you have to structurize your thoughts. If you ask questions, who, what, when, where, why, how, even if you ask question about this product, you will get the answer and you can speak easily 2 to 3 minutes on this headphone itself,
right? So you need to structureize your thoughts. If you need to convince someone, then you need to use this technique: ethos, pathos, and logos. Ethos means building trust, pathos means building emotions, and logos means say something logically. If you want to convince someone, you need to apply this technique. So as there are many thought structures, there are many sentence structures. So there are many thought structures too, like PCC method. For any formal topic, you can speak in this way. Like first, you just mention the problems, then context. Okay, explain. Okay, then context, set the context, then give the solutions. Okay, explain the cause of the problem, provide the necessary background information in the middle. That means context. C means context, and again C means solution. ओके, सॉल्यूशन और कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हैं, PCS भी बोल सकते हैं, PCC भी बोल सकते हैं, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन स्ट्रक्चराइज योर थॉट्स, राइट. नाउ हाउ टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है, ये बताते हैं. देखो, प्रैक्टिस करने के लिए ना हम लोग जो करते हैं कि कोई रैंडम टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर बात करने लग जाते हैं. ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ बैड आइडिया, गुड, ठीक है. लेकिन अगर आप इफेक्टिवली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट टाइम में अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हो, तो आपको एक टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, एंड ताकि आपको जल्दी सीखना आ जाए, ठीक है. अब मान लीजिए एक बोरिंग टॉपिक के थ्रू आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको पता ही नहीं है कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इंग्लिश में सोचते हैं, ये सारी चीज़ आपको नहीं मालूम है, बेसिक चीज़ों में नहीं मालूम है. तो आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे, बोरिंग लगने लग जाएगा, आप छोड़ दोगे, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग क्या करते हैं ना, कोई टॉपिक देते हैं, टॉपिक ऊपर बोलने के लिए देते हैं, तो उसमें ना हम वर्ड शेयर करते हैं आपको, पहले पहले हम आपको वर्ड शेयर करते हैं कि आपको इंग्लिश में सोचना आ जाए. तो सोशल मीडिया के रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम स्क्रीन में रख देंगे, एंड आप उसी वर्ड्स को देखिए इंग्लिश में ऑटोमेटिकली सोचने लग जाएंगे, अपना ओपिनियन देंगे, एंड मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है. फीडबैक के बिना लर्निंग अधूरा है. अगर मैं आपको फीडबैक नहीं दे रहा हूं तो आप फास्ट इंप्रूव नहीं कर पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल. आपको पता ही नहीं है आपका मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है. देखो, लर्निंग ऐसा नहीं होता है कि आपने कहीं से बुक से पढ़ लिया, यूट्यूब वीडियो से कुछ देख लिया, वो तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जो फीडबैक होता है वो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है लर्निंग का. तो आपको प्रैक्टिस आप कर रहे हो एंड आपको कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो तो पता कैसे चलेगा, है ना. तो इसीलिए आपको, और आप हो सकता है सोच रहे हो कि मेरा ग्रामर वीक है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन आपको वीक है, हो सकता है आपका थॉट स्ट्रक्चर वीक है, हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट और कोई कंपोनेंट वीक है. आपको मालूम ही नहीं है क्या इंप्रूव करना है, वो ट्रेनर आपको बताएगा कि क्या आपको इंप्रूव करना है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा जोर डालना है. तो आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा एंड प्रॉपर फीडबैक मिलेगा. हम लोग कभी पिक्चर दे देते हैं, वीडियो दे देते हैं, उसको डिस्क्राइब करने बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, डिबेट कराते हैं क्लासरूम के अंदर, हम लोग चेन स्टडी एक्टिविटीज कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जस्ट एक रैंडम वर्ड दे दिया, एट द पार्क. अब बोलो एट द पार्क, तो आप सेंटेंस बनाने लग जाएंगे, लाइक आई वॉज एट द पार्क yesterday एंड आई वॉज प्लेइंग विद माई किड्स, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द पार्क एट दैट टाइम. तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाने लग जाओगे. दिस इज कॉल्ड चेन स्टोरी एक्टिविटीज. कभी ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, एक्सटेम्पोर पीस, प्रिपेयर्ड स्पीच. मतलब एक्सटेम्पोर मतलब टॉपिक देते हैं, इंस्टेंटली आपको बोलना होता है, कोई वर्ड फॉर्ड नहीं शेयर किया जाएगा, जस्ट आप इंस्टेंटली 2 मिनट उस टॉपिक के ऊपर बोलो. प्रिपेयर्ड स्पीच, आपको पहले ही टॉपिक दिया जाएगा, आप प्रिपरेशन लेके रिसर्च करके आपको क्लास में बोलना है. इंफॉर्मेटिव स्पीच, कोई भी चीज होता है उसके ऊपर तुरंत कैसे बोलना है, इंफॉर्मेशन कैसे देना है, वो उस तरह से हम लोग वो सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा. न्यूज कास्ट, मतलब जैसे न्यूज जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो एक टेक्निक को अप्लाई करते हैं कोई भी सिचुएशन को नरेट करने के लिए, तो वो टेक्निक हम लोग क्लास में अप्लाई करेंगे एंड उस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे. रोल प्लेज, इट्स एन अमेजिंग वे टू प्रैक्टिस स्पीकिंग. दो स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन कराएंगे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को देके. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक शॉपकीपर बनेगा, कोई एक कस्टमर बनेगा, एंड दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन कराएंगे. एंड रैंडमली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, रैंडमली प्रैक्टिस तो होता ही है. दिस इज कॉल्ड रैपिड फायर राउंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग वेज टू प्रैक्टिस स्पीकिंग दैट वी फॉलो इन द क्लास, ठीक है. Now, after speaking, feedback will be shared, and that is the most important part of the learning. So like you would be given feedback on fluency, grammar, vocabulary, pronunciation, thought structures, on your presentation skills, body language and effective communication. तो you should be given the proper feedback. ठीक है, आप बात करोगे, मैं कौन सा पॉइंट में क्या आपको वीकनेसेस आ रहा है, क्या चीज़ कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो सारे इंप्रूवमेंट एरियाज आपको वीकनेसेस में शेयर करता हूँ, एंड एवरीडे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ठीक है. ना अगर मैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल दूंगा, तो इस तरह का पिक्चर शेयर किया जाता है.
क्लास में, एंड देन वर्ड शेयर किया जाता है नीचे में पिक्चर के, एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर यू कैन सी सम पिक्चर्स। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराते हैं, आपको बोलेंगे इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, देन इस पिक्चर के ऊपर बेसिस में कॉन्वर्सेशन होगी। तो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग वेज। नाउ हाउ टू फिक्स योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू फिक्स योर प्रोनाउंसिएशन। देखो इट्स अ बिग डील, कुछ लोग रियलाइज भी नहीं करते कि प्रोनाउंसिएशन में कितना मिस्टेक्स वे लोग करते हैं। एंड प्रोनाउंसिएशन का जो मिस्टेक्स है इट्स अ बिग डील, एंड स्पेशली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट्स नॉट एंटरटेन्ड। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक ग्रामर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन को कैसे फिक्स करते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन में गलत क्यों होते क्यों है, मतलब क्यों हम सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। बचपन से वी हैव बीन, मतलब बचपन से हमें सिखाया गया है, वी हैव बीन टॉट देयर आर 26 लेटर्स, एंड देन उसका मतलब लेटर्स को स्पेल करके हम प्रोनाउंस करते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे। तो राइट वे क्या है, आपको साउंड सीखना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए। देयर आर 44 साउंड्स, आउट ऑफ 44 साउंड्स there are 21 vowel sound, 5 sorry 21 consonant sounds, 5 vowel sounds, ठीक है। अब ये वाउल साउंड्स के बीच में आपकी जो है कि शॉर्ट वाउल साउंड है, लॉन्ग वाउल साउंड्स है, ठीक है। कॉन्सोनेंट में डायग्राफ्स है। तो देर आर डिफरेंट साउंड्स दैट यू नीड टू लर्न। ओके, अगर आप साउंड्स नहीं सीखेंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन में कभी भी आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, एंड आपकी जो इंग्लिश है वो प्रोफेशनल सुनने में नहीं लगेगा, एंड वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई जैसे नॉर्मली कोई गांव का बंदा बात कर रहा है, बट आई एम नॉट डिमीनिंग गांव और विलेज, बट यहाँ पे बात यह है कि आपको उस लेवल से ऊपर उठ के एक प्रोफेशनल तरीके से अपना आइडेंटिटी को छोड़ के आपको दूसरा तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है, ताकि आपको ये प्रोजेक्ट करना है ना कि मुझे इंग्लिश आता है और बहुत अच्छी तरह से बोलना आता है। तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोनाउंसिएशन सही तरह से प्रोनाउंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ वर्ड्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं डेवलप, तो दिस इज नॉट डेवलप, डिवेलप, राइट, डिवेलप। थर्ड वर्ड इज थर्ड वर्ड इज दैट कि ऑन्टरप्रनर, यहाँ पे कुछ अरबिक आ गया लग रहा है, बट एनीवे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे टेक्निकल एरर आ रहा है तो इसलिए ऐसा साइन दिख रहा है। एनीवे तो देखो, मैं दूसरा वर्ड है ऑन्टरप्रनर। ऑन्टरप्रनर पहला साउंड है ओ, ट प्र न, ठीक है, ऑन्टरप्रनर। अब ये साउंड आपको ठीक से आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको स्वा साउंड नहीं मालूम है। इंग्लिश में जो स्वा साउंड होता है ये जो साउंड है ये साउंड आपको नहीं मालूम, तो इसलिए ये आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप देखोगे सुनोगे, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ और यहाँ पे जो डिक्शनरी में आप देखोगे कैसे अलग कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको साउंड सीखना है, क्योंकि ये साउंड आपको सिखाया नहीं गया है। थर्ड वर्ड इज बोल, राइट, हम लोग बाउल बोलते हैं, बाउल इज रॉन्ग, बोल। इन द फोर्थ वर्ड क्लाइम, बी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, बी साइलेंट रहेगा। फोर्थ वर्ड एल साइलेंट रहेगा, सॉरी फिफ्थ वर्ड एल साइलेंट रहेगा, आमंड। देन कंफर्टेबल, यहाँ पे देखो कंफर्टेबल, यहाँ पे जो ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये जो मैंने फोनेटिक्स लिखा है, यही फोनेटिक्स आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, एंड जैसे मैं आपको समझा दूंगा एक दो क्लासेस में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंड थर्ड जो लास्ट वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन गजब है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। इसका जो प्लूरल वर्जन है इस वर्ड का, तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा वीमिन, प्लूरल है तो वीमिन, और सिंगुलर है तो वुमन। सिंगुलर मतलब यहाँ पे ए में एन लिखा हुआ रहता है ना, तो वो सिंगुलर होता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वुमन, राइट। एंड यू ऑल्सो नीड टू लर्न द सिलेबल ट्रेस, कि कैसे कौन से सिलेबल में वर्ड का, कौन से सिलेबल में, कौन से पर्टिकुलर वर्ड में आपको ट्रेस देना होगा। कैरी माई पॉइंट। जैसे फर्स्ट वर्ड इज फेसबुक, हम अगर ऐसे बोलेंगे फेसबुक हो गया, फेसबुक नहीं, फेसबुक, देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, फेसबुक। थर्ड वर्ड में सी ए के ऊपर ट्रेस आएगा, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। फोर्थ थर्ड वर्ड देखो, कम्यू, कम्यू, यू लॉन्ग यू, कम्युनिकेशन, केशन, केशन नहीं है, केशन, शन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं यहाँ पे, और आपको करना नहीं आ रहा है, इसका कारण ये है कि आपको साउंड्स नहीं मालूम है, एंड लेवल ट्रेस भी नहीं मालूम, तो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कभी हमें साउंड को लॉन्ग करना होता है, कभी शॉर्ट करना होता है। जैसे फर्स्ट वर्ड इज फिल, I need to fill the bottle. Second word is feel, long E. First words comes with short E. Second word comes with long E. Then book, food. In food, U is long, long U. So food, good. Then U is short, good. Third, and in the third row, pleasure. This is pleasure. This is edge. Different type of joy है.
और ए ज भी डिफरेंट टाइप का है, ये ज जीरो। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सोनेंट एंड वाउल साउंड्स आपको अच्छी तरह से सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक्चुअली सीखना कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो इसलिए आप सही प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेवलप कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, हाउ टू मॉड्यूलेट वॉइस मॉड्यूलेशन। लाइक यू नीड टू लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक। इफ यू डोंट नो हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, यू कैन नॉट बी ए गुड स्पीकर। दिस एज सिंपल एज दैट। आपको रिदम में बोलना पड़ेगा। लाइक कैन यू गो टू द शॉप, मेन वर्ड में ट्रेस देना पड़ेगा। कैन यू गो टू द शॉप एंड बाय मी सम ब्रेड, कैन यू गो टू द शॉप एंड बाय मी सम ब्रेड। आई वोंट बी एट द पार्टी बट मेरी वांट्स टू गो, आई वोंट बी एट द पार्टी बट मैरी वॉन्ट्स टू गो। तो इस तरह से आपको रिदम में बोलना पड़ेगा, ताकि आप सुनने में लग रहा है कि हाँ यार कोई बोल रहा है। ठीक है ना? कभी आपको सेंटेंस को हाई पिच में रखना होगा, कभी लो पिच में रखना होगा। लाइक वो व्हाट अ सरप्राइज, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पार्टी। वो व्हाट अ सरप्राइज, दिस हैज टू बी इन द हाई पिच। वो व्हाट अ सरप्राइज, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पार्टी। ओके, नेक्स्ट इज डोंट लुक एट योर फोन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। तो ये सेंटेंस मेरा सीरियसनेस दिखा रहा है, तो ये लो पिच में है। ठीक है, पॉज देके बात करना होता है। द फर्स्ट आइटम माइक्रो पॉज ऑन आवर एजेंडा इज टू एड्रेस पार्किंग। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय वाइफ नीता। If you take care of the accounts, I will handle them. I will handle the meeting. Microsoft CEO Bill Gates started a charity to fight poverty. My new phone is acting up, so could you email me instead? तो इस तरह से आपको पॉज दे दे के बोलना होता है। ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से मैंने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया और ये बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एकदम पॉज, छोटा छोटा पॉज देके बोलना होता है। इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सी द डिफरेंस, अगर हम गलत जगह पे पॉज देते हैं ना, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब देखो, ओमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, मतलब ओमन विदाउट हर मतलब एक मैन कुछ नहीं है अपनी बंदी को छोड़ के, मतलब अपना वुमन को छोड़ के कुछ नहीं है। तो वुमन विदाउट हर, उसको छोड़ के मैन इज नथिंग। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैन कुछ नहीं है वुमेन को छोड़ के। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में वुमेन को इंपॉर्टेंस दिया गया है, वुमेन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा सेंटेंस में मैन इज इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। वुमेन विदाउट हर मैन, यहाँ पे वुमेन के बाद पॉज नहीं दे रहा। वुमेन विदाउट हर मैन मतलब वुमेन, उसको मैन को छोड़ के कुछ नहीं है, मतलब मैन इज इंपॉर्टेंट। जो भी है मैन है, वुमेन तो कुछ नहीं है। वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो इस तरह से अगर आप गलत जगह पे ट्रेस दे दोगे तो मीनिंग गलत ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन्फ्लेक्शन। अगर आप वर्ड में, जैसे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस स्लाइड में, तो वैसे ही मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। गलत जगह पे अगर आप ट्रेस देते हो तो मीनिंग गलत आ सकता है। जैसे आई डिडंट से, देखो एक ही सेंटेंस मैंने लिखा, एक ही सेंटेंस लिखा, बट अलग अलग वर्ड में मैंने बोल्ड करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है। ये क्यों करके रखा है मैं आपको समझाता हूँ। आई डिडंट से स्टोल द मनी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है। हु सेड, तुमने बोला, मैंने बोला। आई डिडंट से, तो मैं डिनाई कर रहा हूँ, मैंने नहीं बोला। आई डिडंट से स्टोल द मनी। दूसरा सेंटेंस में यस एंड नो, तुमने बोला या नहीं बोला, तो मैंने नॉर्मली बोल दिया आई डिडंट से स्टोल द मनी। थर्ड वर्ड, तुमने कैसे बोला, मतलब मुंह पे बोला, वर्बली बोला और लिख के दिया, रिटर्न एप्लीकेशन दिया। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, हाउ, कैसे ये काम किया? आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। थर्ड वर्ड, हु स्टोल इट। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, यहाँ पे पर्पस ये है किसने चुराया। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मे बी कोई अदर पर्सन चुराया है, तो आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, यहाँ पे क्या किया, मतलब स्टील और समथिंग एल्स, मतलब चुराया गया है या बोरो किया गया है। ठीक से बोलो, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। स्टोल पे मैंने ट्रेस लगाया क्योंकि मुझे इसमें ट्रेस देना है कि उसने क्या किया, चोरी किया या उधार लिया और कुछ किया। नेक्स्ट वर्ड, सब कुछ ठीक है, पैसा तो उन्होंने चुराया, लेकिन कौन सा पैसा, तो वो द के ऊपर मुझे ट्रेस देना है। विच मनी, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, ही स्टोल द मनी। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, ही स्टोल माय स्मार्ट वॉच। मतलब यहाँ पे क्या चुराया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मीनिंग के हिसाब से हम ट्रेस भी, कौन सा सेंटेंस में ट्रेस आएगा, एम्फेसिस आएगा, ये भी हम बदल देंगे, है ना? तो इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कभी हमारा टोन राइजिंग होता है, कभी हमारा टोन फॉलिंग होता है। समटाइम्स यू नीड टू से इन राइजिंग टोन, समटाइम्स यू नीड टू से इन फॉलिंग टोन, राइट? हैव यू सीन, हैव यू ईटन फूड, सॉरी, हैव यू ईटन फूड, आर यू कमिंग टू द पार्टी, are you coming to the party, are you coming to the party? What is this nonsense? What is this nonsense? What is this nonsense? Can you help me with this? Do you know where the nearest coffee shop is? What have you done? What have you done? What have you done? Right? तो there are many ways to say this. ये डिपेंड कर रहा है आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो मीनिंग के ऊपर डिपेंड करके, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, यू नीड टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, यू नीड टू समटाइम्स राइज इन्फ्लेक्शन,
Sometimes you need to follow the following intonations. So in this way, you need to modulate your voice. Now, body language. Body language is also crucial. See in this picture that you can easily understand, although you don't know them personally, but you can understand who have the right body language, who is confident, who is casual, who is not interested, who seems to be disinterested. You can easily understand. Similarly, when you speak in the real life conversation, we also understand that who is serious, who is not confident. We can easily understand. Sometimes we speak like this. Okay, so this is not the right body language. This is, means that you are withdrawing yourself from the conversation. You are not interested. Sometimes we put hands into our pockets. That is also not good. Sometimes like we stand like a waiter. हम लोग पीछे में हाथ रख देते हैं. We put our hands behind and then हम बात करने लग जाते हैं. उसी से लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप एक वेटर की सिग्नल दे रहे हो, है ना. तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी इंपॉर्टेंट है. ये भी हम लोग क्लास में सीखेंगे वीडियो के थ्रू. रियल लाइफ में ऐसे बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे क्लास में, तो आप सीख जाएंगे. नाउ मैं एग्जांपल देता हूँ कि इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव वॉइस मॉड्यूलेशन को मिला के कैसे बोलते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, इसको मैं रीड आउट करके आपको सुनाता हूँ. आई विल बी देयर. I will be there. Those four words can help you make a friend. If you say it enough times, follow through, you'll make a lifelong friend. Mr. Contestian and potential lifelong friend. Do you have someone that you can always count on? For me, it was Jenna. From grade school to college, she was my best friend. And whenever I needed, she was always there. Getting my point? So you need to have good gestures, you need to have effective voice to in order to put across your point. Okay, so in this way you need to speak. Okay, now I have covered body language, I have covered how to fix your pronunciation and how to improve your fluency, how to develop voice. Everything I have covered. Okay, and everything you will get to learn in this course. Okay, step by step, in the right way, in the right directions, and you will come out as a good speaker, as a good orator. Okay, now in this course, not along with the live classes, you will also get to learn 10 ebooks. You'll get to learn, I mean, you will get 10 ebooks. Okay, also you'll get one physical copy of the book. Okay, that will be delivered to your address. Okay, so phrase mastery books, English collocations mastery book, grammar mastery book, vocabulary mastery book, get the right pronunciation ebook, 15 thought structures, techniques ebooks. All these ebooks will be given to you on your WhatsApp or on your email. Okay, and one hard copy also will be delivered to your home. Apart from that, you'll be getting 20 video lessons with 100 exercise sheet. A group will be formed. Apart from that, a group will be formed. Their everyday exercise will be shared. Their everyday exercise will be shared. So you are exposed to English every day. You are exposed to practice every day. Every day you will be given the opportunity to practice speaking. You'll be shared with the feedback. You'll get proper feedback and you will develop your fluency. Okay, very quickly. All right. And live classes would be also taken place, as I told you. So apart from live classes, you'll be getting these ebooks and videos and exercises. So you'll be given the live classes. And after this course, you'll never go blank. You'll be fluent in English. You will know how to think quickly and frame sentences quickly, right? How to apply thought structures. You without checking from any online tool, your sentence will be accurate. Okay, you'll never go blank. Your hesitation will be completely removed. Okay, and you can fix your pronunciation, right? And along with that also you will get personal development hacks like effective communication, emotional intelligence, social skills. Okay, positive vibes. You will also get as bonus points that interview techniques, how to crack interview, how to build resume and all. Yeah, so that's all about the session. I hope you enjoyed the lessons. Okay, now as you are an action taker, so I think that you will take the actions, you'll make your decisions to join this course. And I can tell you that I want you to be an amazing speaker. I want you to be a good speaker, and wherever you go you shine, and you have the huge potential. Just improve your communication skills and leverage your huge potentials, and tell the world that who you are. Mark your presence and make your presence felt. Thank you so much and see you.
Hope to see you on the other side. Thank you. Bye bye.